Hi guys, welcome to my channel. And today we will talk about the assignments for the December 2024 cycle for the subject microeconomics and macroeconomics. So firstly, we quickly go to the assignment. So this is the your assignments, which comprises of two questions of 20 marks. The first question is of 10 marks, wherein you need to write somewhere around 1000 words. Again, reiterating plus minus 10%, like 900 to 1100 words is fine. The second question has two parts, 2A and 2B. Each question is of 5 marks, and the number of words is 500 words, again plus minus 10%. Two important things just keep in your mind. First thing is, do not share your assignments with anyone, and the second one is, do not directly copy paste the content from the internet or some AI tool, because it will fall under plagiarism and you will get the 0 marks, right? So let's quickly see what all content you need to write in these questions, and what page numbers to be referred, and what all stuff we need to mention in the assignments. So the first question says, the COVID-19 pandemic of 2020 caused significant disruptions to international business operations because numerous firms relied on the suppliers from different nations, notably China. Many companies used lean production method and kept low inventories in order to cut costs. However, this made this susceptible to supply chain interruption. For instance, worldwide supply lines for electronics, including the parts of laptops and cell phones, were impacted when lockdowns forced Chinese facilities to close. The fact that a large portion of auto parts was made in China presently difficulties for automakers as well, resulting in major global production halts. What impact would the COVID-19 worldwide lockdowns have made on the European supply curves for consumer electronics and auto factories? Explain your observation about the aforementioned scenario, emphasizing on the supply side and the shift in the supply curve. Note, you can make the assumptions as per the requirement of the case. So guys, यू ऑल नो के when जब कोविड 19 आया था, तब बहुत सी कंपनीज ऐसी थी जो बंद हो गई थी, या बहुत सी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपनी जो सेल थी वो लिमिटेड कर दी थी. एंड द रीज़न ऑफ लिमिटेड सेल इज़ वेरी सिंपल के अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, दे वॉन्ट हैव इनफ स्टोरेज. उन्होंने अपने वेयर हाउसेस बंद कर दिए थे टू जस्ट सेव सम मनी ऑन देयर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, रेकरिंग एक्सपेंसेस. तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्शन स्टार्ट किया. जो रिक्वायरमेंट है, लीन प्रोडक्शन क्या होता है या फिर लो इन्वेंट्रीज क्या होता है, जितना रिक्वायरमेंट है, लाइक आज 1000 सप्लाईज चाहिए तो दे जस्ट प्रोड्यूस 1000 सप्लाईज एंड डिलीवर इट 3 or 4 days, राइट. सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया था वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे आया था, या फिर हम ऑटो पार्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज चाइना को बहुत जगह बैन कर दिया था, चाइना का इम्पैक्ट आया था. तो इस क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट कि सप्लाई साइड एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. सो बेसिकली आपकी दो चीज़ें होती है, कि आपका डिमांड साइड होती है, कि आपकी सप्लाई साइड होती है. डिमांड एंड सप्लाई, दे सिमिलर टू द डिमांड एंड सप्लाई कर्व एंड इट्स शिफ्ट. सो लेट्स सी कौन से पेज नंबर्स रेफर करने हैं, क्या कंटेंट लिखना है. फर्स्टली वी नीड टू राइट व्हाट्स द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व. देन वी नीड टू टॉक अबाउट द मूवमेंट एंड द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व एंड रिलेटेड विद रेफरेंस टू द केस स्टडी. पेज नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो पेज नंबर 51 एंड 68. सो लेट्स क्विकली गो टू द पेज नंबर 51. So I'm just going to the page number 51. So 51 is talking about the demand curve and the supply curve. Obviously, demand curve is not the ask of the question, so we just need to talk about the supply curve and slope. And after that, we need to mention the page number 68, where we are talking about the movement एंड शिफ्ट इन द सप्लाई का. दोनों चीज़ों में फ़र्क है. वन इज़ द आपकी क्वांटिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, दूसरा होता है चेंजेस इन द सप्लाई इन द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस. ठीक है, एक में प्राइस फैक्टर इम्पैक्ट करता है, एक आपका अदर देन प्राइस फैक्टर होता है. एक आपका अपवर्ड या एक्सपेंशन होता है, दूसरा आपका राइट शिफ्ट होता है, राइट. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड राइट शिफ्ट एंड द लेफ्टवर्ड. सो गाइज, जस्ट ट्राई टू मेक द डायग्राम्स. ये ग्राफिकल अगर आप बना सकते हैं, इट्स वेरी गुड. अदरवाइज अगर आप इंटरनेट से कहीं से कॉपी कर रहे हैं, डू मेंशन द रेफरेंस, कौन से पेज या कौन से यूआरएल से आपने रेफरेंस लिया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेटेड विद द क्वेश्चन. I hope first question is pretty much clear. Now moving to our second question. The second question talks about the London black cab taxis are amongst some of the expensive in the world. They compete to some extent with minicabs, which tend to be cheaper. However, minicabs are not allowed to pick up the customers off the street.
they have booked in advance, and their drivers do not have to memorize a location street map. Minicabs operate in a more competitive market and requires less of the drivers. Black cab, the licensed cab drivers must pass a background check and a medical tax and pay a fee of over 200 pounds. They may help to ensure that passengers are safe and drivers are accountable, but it also means that they have a monopoly on picking up the people on the streets. Elaborate on the given market structure. Black cabs and minicabs discuss the implication for the markets with high barriers to entry. सो गाइज यहाँ पे हम लोग दो कंपनीज की बात कर रहे हैं लंदन की. वन इज़ द ब्लैक कैब एंड सेकंड वन इज़ द मिनी कैब. ब्लैक कैब क्या है देख के ही आपको पता पड़ा, एक थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन है जहाँ पे जो उनके ड्राइवर्स होते हैं दे पास थ्रू BGC वेरिफिकेशन, उनका बैकग्राउंड चेक होता है, दे हैव सम मेडिकल टेस्ट, उन्हें एक फ़ी पे करनी पड़ती है. मिनी कैब्स अ सॉर्ट ऑफ अ लोकल वर्जन जहाँ पे कोई भी कहीं से भी उठा के अपनी कैब चला रहा है. दे आर नॉट अ प्रोफेशनल वन, a little bit less than the black cabs. So इन दो हम कैब्स का अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो हमें बताना है कि हाउ दिस विल इम्पैक्ट द एग्जिस्टिंग मार्केट एंड क्या बाहर से जो मार्केट से जो एंटर कर रहे हैं उनके लिए क्या बैरियर्स रहेंगे इन द एंटरिंग ऑफ द न्यू मार्केट प्लेस इन एंटरिंग द न्यू मार्केट एरिया. जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे ओला एंड उबर आर द वंस हु आर कैप्चरिंग द होल मार्केट, बट येस दे आर अदर वंस लाइक द मैरू कैब्स आर देयर, वी हैव जुगनू कैब्स, सो मैनी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स. तो हमें ये बताना है कि कंपटीशन का क्या स्टेटस है एंड हाउ कोई भी नया मार्केट में जब कंपटीटर आता है तो उसके लिए कितना बैरियर या कितना टफ रहेगा टू मेक एन एंट्री इनटू द एग्जिस्टिंग मार्केट. सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एलिगोपोली की, तो हमें एलिगोपोली की बात करनी है, ओलिगोपोली की फीचर्स की बात करनी है. डेफिनेटली हम लोग अपनी केस स्टडी से रिलेट करेंगे. गोइंग टू द पेज नंबर 236. तो 236 पे अगर हम देखेंगे तो ओलिगोपोली मतलब फ्यू हु आर सेलिंग दिस थिंग, ठीक है, मीन्स कुछ पावरफुल कंपटीटर्स प्लेयर्स. तो उसकी फीचर्स की हम बात कर रहे हैं. मार्केट कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, एंट्री बैरियर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस वार्स और द कोलिजन, सबके बारे में आपको ब्रीफिंग देना है. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू रिलेट इट विद द एग्जिस्टिंग केस स्टडी ऑफ द कैब सर्विस प्रोवाइडर्स. लाइक यहाँ पे जैसे दिया हुआ है टेलीकॉम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, ऐसे ही आपको एक सर्विस प्रोवाइडर की बात करनी है. आई होप द सेकंड क्वेश्चन प्रीटी मच क्लियर. मूविंग टू द सेकंड बी क्वेश्चन. The two main industries driving Zambialand economy are manufacturing and agriculture. The government aims to optimize the production in both the areas, giving the limited financial resources and a workforce of 10,000 individuals. In order to improve the economic well-being, a balance between the agricultural produce and manufactured items is desired. Based on the resource allocation, the Zambialand PPC show the different production combination for manufactured items and agriculture goods. The PPC for the Zambialand illustrates various production combinations for the agriculture goods and manufactured products based on the resource allocation. Explain the concept of PPC and the scarcity in Zambialand that is reflected in the PPC in the given scenario. You are also required to share your views on the implication of the operating side, the production possibility curve in Zambialand and what do you suggest about the resource utilization. So यहाँ पे हम लोग एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं. जैसे एग्रीकल्चर गुड्स है उसकी 500 यूनिट्स है तो उसकी 0 है, 400 है तो 50 है, 300 है तो 80 है एंड सो ऑन, लास्ट में 0 है एंड 140. तो अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर गुड्स का जो यूनिट्स है वो बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बहुत कम है. आप देखिए जब लास्ट में एग्रीकल्चर यूनिट 0 हो गया वी हैव ओनली 140 यूनिट्स. बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक आपका बैलेंस है 450 और द मोस्ट बैलेंस वन इज 380 एंड 200 एंड 100. तो पीपीसी कर्व टॉक्स अबाउट दिस बैलेंस इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या लिखेंगे. बुक में अगर आप देखेंगे तो वी हैव द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, पेज नंबर 11 एंड 12 पे, एंड पीपीएफ एंड हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे. सो गोइंग टू द पेज नंबर 11 एंड 12. सो सबसे पहले अगर आप 11th पेज पे देखते हैं तो 11th पेज पे वी हैव द मेंशनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट एरियाज़ की बात करते हैं, हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज विल वर्क ऑन दिस. अंडरस्टैंडिंग द पीपीएफ ये आप मेंशन करेंगे, पीपीएफ एंड द अपॉर्चुनिटी कोड्स की आप बात करेंगे, ठीक है. सो दिस इज ऑल विच वी नीड टू हाईलाइट इनटू दिस, ठीक है. एंड अगेन आप एक एग्जांपल या एक डायग्राम के थ्रू आप इसको शो कर सकते हैं. ऑब्वियसली आपको केस स्टडी से रिलेट करना है कि एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हम लोग कैसे एक बैलेंस वे में दिखा सकते हैं, राइट.
So guys, I think we are pretty much clear with all the questions, and if you have any doubts, feel free to just connect to me at njscmba.cdo@gmail.com or njc.mba@gmail.com, or you can just connect me over my LinkedIn ID. And if you have any doubts, just feel free to connect to me. And if you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for other videos for the assignments and exam questions. Thank you so much. Bye bye, guys.